जहां प्यार हो वहां लड़ाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़ाई को कहते हैं प्यार वाली लड़ाई। इस प्यार वाली लड़ाई से मुझे एक वाकया याद आया। एक खामद अपनी बीवी को उसके घर छोड़ाया। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि बीवी का फोन आया कि मुझे वापस लेने क्यों नहीं आ रहे। खामद कहने लगा अभी तो बस 2 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे वापस लेने आऊं, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गई थी। तो कहने लगी कि यहां घर के एक एक फर्द से लड़के देख लिया, जो लड़ने का मजा तुम्हारे साथ है किसी और में। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कॉमन शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से ले जाया जाए। वाह वाह वाह, लड़ाई ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਹਾਏ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇੰਨੇ ਹਾਸੇ, ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਨੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਅੱਛਾ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਕਦੀ ਭਾਬੀ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਬੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਚੱਲ ਸਕੂਲੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਬ ਹੈ ਘਰ ਚ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਗੋਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤੋਬਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੱਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਸ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਖਾਵਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਯਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ।
इमरान भाई जी आपकी इजाजत से एक जी पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ अपनी दीजिए, ऑडियंस को। दीजिए। रौनक रमजान करशी जामे शीरी के साथ। जी हाँ, 100% खालिस अर्कियात से तैयार करदा। हाँ तो फिर आप भी खालिस बनाएं, सहरो अफ्तार की खुशियां जामे शीरी के साथ। और उसकी तमाम मरकियात हमने इस कुंडी में रख दी। जोरदार था। पाकिस्तान का जब भी नाम आता है, कोई भी ऐसा दिल जो मुहिब्बुल वतन है, जो वतन की मिट्टी से प्यार करता है, वो खुशी से तेज धड़कने लगता है। वाह। और आज का मेहमान वो मेहमान है जो पाकिस्तान के झंडे के साए के तले क्रिकेट के ग्राउंड में एक फौजी बन के हमेशा लड़ा। आप लोगों की ढेर सारी तालियों में आ वंडरफुल फास्ट बॉलर, यॉर्कर और बाउंसर के मास्टर मोहम्मद इरफान साहब, प्लीज। मैंने जिंदगी में खुद को ऐसे कभी महसूस नहीं किया। हालांकि मैं भी 6 फीट का हूं, लेकिन आज मैं 4.5 फीट का लग रहा हूं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे को क्या हो गया रे? सर थैंक यू वेरी मच। आपने पाकिस्तान को सर्व किया, आप पाकिस्तान के लिए खेले, आप पाकिस्तान की शान है, आन है। हमारी तरफ से आपको सलूट सर। प्लीज तशरीफ रखिए। वाह जी वाह इरफान भाई, वेलकम। थैंक यू। बसंत वाले दिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਫੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। लेकिन मैं सलूट पेश करना इरफान भाई ਨੂੰ। क्या बात। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜਾ, ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਨੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी हर की हुई इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर और यॉर्कर की तरफ क्या बात। वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या बात। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। इरफान भाई वेलकम टू मुज़ाकरात। माशाल्लाह। थैंक यू जी। क्या कदो कामत माशाल्लाह। बल्कि ये तो कदो कयामत। इरफान भाई आपकी नज़र कुछ सूफी अशार करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। मालिक दे हथ इज्जत जिल्लत ते ओह वंडियां पावे, ओ चावे ते चिड़ियां हथों बाजानू मरवावे, ते पढ़ने दा ना मान करी तू, ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मत्ता रोड़ देवे दुध कड़िया। अरे हेलो जी। बड़े तो बड़ा ते छोटे तो छोटा।
अच्छा इरफान भाई देखो ना शेरा गेंद ही ला के ਸ਼ੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਕਤਰੇ ਪੋਲੀਓ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ बसंत वाले दिन किराया बचाया उन्हें ਕਿਵੇਂ गुड्डी उड़ा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ लमक के गुजरान पहुंच गया ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਂ। ਜੋ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ 1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਸਮੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੁੱਛ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਕਦੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੱਜੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਡੋਰ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਪ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। इरफान भाई बड़े सुपरस्टार आदमी ने यार क्या बात इन्होंने कुड़ी ने प्रपोज भी करना हो ना तो दरख्त पे चढ़ के कह रही थी मैं आपको पसंद है। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਗਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਤੰਗ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਲਵਾਏ ਸਨ। इरफान वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि जो परफॉर्मेंस आपने पाकिस्तानी टीम के लिए दी है, क्या बात है। असल में एक तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी लंबी हाइट दी थी। उसके बाद जब आप पाकिस्तान से खेलते हो और ऊपर से परफॉर्म करते हो जी तो आपका भी दिल करता है कि पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा अचीवमेंट लेके आए। तो ये मेरे लिए बहुत है कि अल्लाह ताला ने इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा इज्जत दी। माशाल्लाह। क्या बात। इरफान एक शेर आपकी नजर करना चाहिए। आयशा वेख ला ਵੱਡੀ जगह ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤੂੰ। बस देख ले, पहुंच जाओ। इरशाद ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਪਹੁੰਚ जी इरशाद। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। इरफान साहब, गग्गू मंडी बूरेवाला की मिट्टी में ऐसी क्या तासीर है कि पाकिस्तान के बहुत से फास्ट बॉलर वहां पैदा हुए? क्या शुरुआत से ही क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट था वहां के लोगों को, या वकार यूनुस साहब के स्टार बनने के बाद लोगों में ये जज्बा पैदा हुआ? नहीं, असल में एक छोटा कस्बा है गग्गू मंडी और बुरेवाला। वहाँ पे एक तो ज़ाहरा हमने देखा हुआ ज़ाहर भाई को, जाहिद भाई वो को। भी मोहम्मद जाहिद है और काफ़ी क्रिकेटर हैं हमारे वहाँ के। तो एक वो क्या कहते हैं ना, एक खिता इस तरह का होता है जहाँ पे देखो देखी ज़्यादा क्रिकेट होती है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ से फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा है। वकार भाई का नाम है, मुझसे पहले मोहम्मद जाहिद थे, उनका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। एक मेरी हाइट का है और दूसरा डोमेस्टिक में है। मैंने 24 बॉलों में 23 डॉट बॉल किए हैं और 1 रन दिया था 4 ओवर में। वो भी अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट में। क्या बात है, क्या बात चाहिएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है मोहम्मद इरफान एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੀ।
इरफान साहब, एक लड़का जो पाइप फैक्ट्री में काम करता था, कभी पाइप फैक्ट्री में काम करते हुए उसने ये सोचा कि एक दिन आएगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए इंटरनेशनल ग्राउंड में, जहां उसके साथ पूरे पाकिस्तान की दुआएं और पाकिस्तान का जज्बा होगा और वो परफॉर्म कर रहा होगा, कभी ये सोचा? असल में जिस तरह मैंने मेहनत किया, जो बैकग्राउंड है वो लोग इतना नहीं जानते, क्योंकि आप बैठते हो कहीं भी तो जो मोटी मोटी चीज़ें तो वो बताते हैं। तो बताइए ना आज पतली पतली। आपने जिस तरह बोला, पैप फैक्ट्री में मैं काम करता था। वहां क्या करते थे आप? वहाँ पे पहले तो मैं एज ए हेल्पर गया था, तो उस टाइम मेरी थी पे, अभी तो कोई सोच भी नहीं सकता, 1300 रुपया मेरी पे जब मेरे स्टार्ट हुआ था। तो ये तकरीबन बात है 2001 या 2 की, ये इतनी को पुरानी बात नहीं है, 1300 रुपया तब भी बहुत कम था, ऐसे ही है। बल्कि ना होने के बराबर। तो उसके बाद फिर मैं साथ मेहनत करता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मुझे लगन बहुत थी इसकी, क्रिकेट की। लेकिन ये चीज़ नहीं सोची थी मैं किसी दिन पाकिस्तान टीम में जाऊंगा, लेकिन एक शौक इस तरह, जिस तरह आप गली मोहल्ले में एक टेप बॉल खेलते हैं, उसके बाद हार्ड बॉल पे आप चले जाते हो, तो वहां पे आप परफॉर्म करते यानी हो। कि टीम तक का नहीं सोचा था, बस एक लगन थी कि बस खेलूं, कभी ये नहीं अच्छा, यानी कि जहन में भी नहीं आया कभी कि पाकिस्तानी टीम में आ सकता हूं। लेकिन एक चीज़, एक ख्वाब इतना बड़ा था ना, लेकिन शौक बहुत था। लेकिन जिस तरह वसीम भाई, वकार भाई और जितने भी हमारे बाकी सीनियर क्रिकेटर उनको देखते, तो लेकिन ये आता था यार कभी हम भी इधर खेलेंगे। तो लेकिन जब मैं 2008-9 में लाहौर आया, तो पहले तो मुझे टेंशन थी यार, मैं इतनी पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो पता नहीं दोबारा लाहौर किसके कहने पे आए? क्या ऐसा कौन सी किरण दिखाई दी आपको जिसके पीछा करते करते आप यहाँ पहुंच गए? असल में मैं खेलता था, गोगो मंडी क्रिकेट क्लब हमारा है, उसमें खेलता था। तो वहाँ के हैं एक हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नदीम इकबाल, वो यूके जाते थे खेलने, डोमेस्टिक जो लीग खेलने, जिस तरह प्लेयर जाते हैं सारे डोमेस्टिक प्लेयर। तो उनके जो थे वहाँ का क्लब, अटक क्लब था, वो वहाँ पे टूर के लिए आया था। उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में मैच खेले थे, तो उस क्लब के साथ मेरा मैच हुआ था। तो मैं उस 2 मैचों में दोनों दफ़ा 5-5 आउट किए थे। अच्छा, तो एक क्या, जो आप जिस तरह आपने मेरा शुरू में तारफ कराया था कि यॉर्कर भी मारे, 1-2 के अंगूठे भी टूटे। अच्छा, तो तकरीबन उन्होंने 5 या 6 साल के अंगूठे बाद, तोड़ दिए आपने? हाँ जी, हड्डियां तोड़ दी अंगूठे और आप हंस रहे हैं इस बात पे। जब वो चौका मारते हैं फिर वो हंसते हैं ना। नहीं सर, चौके च हड्डी नहीं टूटती। अच्छा, तो उसके काफ़ी तकरीबन 5 या 6 साल के बाद आकिब भाई के उनके क्लब में गए, आकिब जवेद। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा यार इस तरह एक लंबा लड़का है मोहम्मद इरफान, वो कब पाकिस्तान टीम में आ रहा है? तो उनको जाने बुला, इरफान किधर? इरफान तो कोगो मंडी में खेल रहा है, इधर किसी को भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, उसकी इतनी हाइट है। तो उन्होंने उधर फिर उनसे सुन के, फिर जो नदीम इकबाल थे उनका नंबर था उनके पास, क्योंकि वो इकट्ठे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए थे। उन्होंने फ़ोन किया कि यार इस तरह कोई लंबा लड़का इरफान है, तो कैसा? बोला, उनका ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला कि उसको इधर NCA एकेडमी में भेजो, मैं उनको देखता हूँ, अगर तो ठीक हुआ उसकी केयर करेंगे, तो फिर उसके बाद जहाँ तक हो सका उसका मतलब कि हेल्प करेंगे, जो जो चीज़ें बताने वाली वो बताएंगे। वो मेरे पास आए, इस तरह करके आपने जाना है। मुझे अच्छा, अब ये एक मुश्किल फैसला था कि लगी लगाई नौकरी। तब तनख्वाह कितनी हो चुकी थी आपकी? उस टाइम मेरी 10,000 थी। 10,000 रुपए छोड़ के दूसरे शहर जाना, और ये भी नहीं पता कि वहाँ कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस रात नींद आई जिस रात फैसला करना था? नींद मुझे मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था। वो मेरे लिए 10,000 इस तरह के थे, जिस तरह अभी आप लगा लें कि किसी वर्कर की 1 लाख रुपया तनख्वाह हो, तो वो अगर छोड़े तो देखे यार मैं छोड़ के जाऊंगा। गुर्बत देखी जिंदगी में? बहुत ज़्यादा, लेकिन कितनी ज्यादा? वो वाली नहीं देखी कि जिस तरह एक होता है। लेकिन मैंने चीज़ें इस तरह की कि मेरे फुट बहुत बड़े थे, मुझे शूज़ नहीं आते थे, लेंथ मेरी ज़्यादा थी, टो शर्ट लेने के लिए मुझे स्पेशल जाना पड़ता था। अभी भी पूरे पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं मुझे मिलती, आउट ऑफ कंट्री से ही आती हैं। अच्छा, तो फिर आपने जब फैसला लिया, किसी दोस्त, घर वाले, माँ बाप, किसी में से किसी ने आपको मशवरा दिया कि छोड़ो फैक्ट्री, जाओ अपने ख्वाब के पीछे? शुरू में जितनी भी क्रिकेट खेली है घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुद मुझे आता था कि मैं सारा काम भी करूं, थोड़ा बहुत अपना खर्चा खुद अफोर्ड करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जाओ, एक दफ़ा ट्राई तो करो, क्या कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे आया, आकिब भाई ने मुझे देखा है, तो उन्होंने कहा यार आप ऐसे ना कहें कि आकिब भाई ने मुझे देखा है। तो आकिब भाई ने देख के मुझे कहा अपनी तैयारी शारी करो।
स्पाइक्स वगैरह पहनो तो चेक करता हूँ मैं। उस टाइम मुझे याद है कि मैंने फुल टॉस बॉल की थी, वो 128 पे गई थी, 128 पे। तो मतलब कि फुल टॉस इतनी ज़्यादा पेस थी नहीं, हाइट थी, लेकिन उसके साथ मैंने वो ट्रेनिंग नहीं की होती जो एक फास्ट बॉलर के लिए चाहिए होती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बाद में कहा, आज भी मुझे याद है कि उन्होंने कहा यार तेनों एक हफ्ता रख दें थे, पंजाबी में ही मैं बता रहा हूँ आपको ना, तेनों एक हफ्ता रख दें थे ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, अगर नहीं है तो फिर जाके फिर ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਂ। उसी ट्रैक पे जहां आपने 128 किलोमीटर पर आवर पे बॉल की थी, फिर मेहनत के बाद कितनी स्पीड में फेंकी? मैंने 135 पे। क्या बात। तो फिर जैसे ही एक वीक के बाद मेरे ट्रायल दोबारा हुए, उन्होंने देखा 135 इंप्रूवमेंट लेके आया, उनका आप यहाँ पे रहो, आपका खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे आपने बस मेहनत अच्छा, करनी ये तो फिर शाबाश बनती है आकिब जावेद साहब के लिए कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इतना सोचते हैं। सर, पाकिस्तान में कभी भी फास्ट बॉलर कम नहीं हुए, बिल्कुल। पर कंसिस्टेंसी की कमी है। ये सिस्टम का कसूर है या कोचिंग में कहीं ना कहीं गफलत होती है? नहीं, असल में इससे पहले अगर देखा जाए कि तकरीबन जो अभी यंगस्टर खेल रहे हैं, उनसे पहले जो थे वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते थे। अभी आपने देखा होगा कि T20 आने के बाद, T10 आने के बाद हर एक का यही शॉर्टकट आ गया कि मैं T20 खेलूँ, T10 खेलूँ, मैं वनडे ना खेलूँ, टेस्ट मैच ना खेलूँ, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना खेलूँ। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में 4-4, 5-5 दिन बॉलिंग की है। जब आप वहाँ पे एक प्रॉपर वर्क करके आते हो, वहाँ पे मैच खेलते हो, 1-2 सीजन खेलते हो, वहाँ पे फिर आपको पता चलता है कि आपने किस तरह आउट करने हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसमें खिलाड़ियों का अपना कसूर है? अपना भी कसूर है इसमें, भी ये क्या? नहीं आप कह सकते पीसीबी का या किसी का, क्योंकि आपकी टेस्ट क्रिकेट है जो बहुत कम होती है, उसमें इतना फेम नहीं है। T20 बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है, और सबसे बड़ी बात क्रिकेट तेज़ बहुत हो गई है। तो वहाँ पे फिर आप उसी टाइम उस बड़ी क्रिकेट में सर्वाइव करेंगे जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप उस पर वर्क किया होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए सबसे फनी, सबसे मजाहिया वाकया जो आप सारी जिंदगी ना भूल सकते? काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं। जिस तरह मेरा डेब्यू हुआ था, पहला मेरा 2010 में डेब्यू हुआ था, और उसके बाद जब दोबारा कमबैक हुआ था मेरा इंडिया के खिलाफ, एक है कि मतलब उन्होंने पूछा यार इरफान किस तरह, विराट कोहली, ये वो ना सारे जितने भी प्लेयर हैं, कि किस तरह जो साथ होता है ना कोच या स्टाफ का कोई लड़का जो भी आप समझ लें, उससे पूछा यार क्या करता हूँ, उनका लंबाई लंबा है तो ये बॉलिंग ना बस 130-135 तक करता, आप सर्वाइव कर लोगे। पहला बॉल किया मैंने 146 पे। ओए होए होए। तो पहला बॉल होता था, जो बैट्समैन होता है वो कहते शायद जो स्पीड गन है उसमें कोई मसला होगा। दूसरा 147, तीसरा 148। वो मैं कह नहीं सकता जो विराट कोहली ने बताया था। क्या कहा? उसको साथ गाली दी ना जो साथ बैठा था। गाली देके क्या कहा? उसको उसने जो भी गाली दे के बताया कि यार आप कौन सा मीडियम फास्ट कर रहे हो, वो 150 पे बोल रहा और कोई वाकया, और कोई वाकया, कोई और एक दफा उसके साथ हमारा मैच हो रहा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे थे। हमने पहले टॉस जीत के बैटिंग की, हमारी टीम मेरे ख्याल 100 से नीचे ही आउट होगी। लंच से पहले हम बॉलिंग करने शुरू हुए, लंच से मतलब पहले दिन से तकरीबन 3 दिन हमने बॉलिंग की। सुबह ही हमारे कैप्टन थे, तो उनके 2-3 आउट हुए थे। तो मेरा वो सेकंड टूर था, उस टाइम इतनी ज़्यादा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप कोई इंग्लिश वगैरह का ना। तो तीसरे दिन मिसबा भाई मेरे को आया, मिसबा भाई कहते यार ना बॉल करके वापस चला जाना, पंजाबी में बता रहा जो उधर बात होती है हमारी, तो उन्हें तू बॉल करके वापस जा, घूरी घारी पा ते उनको गाल गोल काट जो भी स्लेजिंग कर। असल में वो सेट खड़े थे ना, उनको कोई ना कोई इस तरह का गुस्सा दिलाओ। आए। मैं कहा मिसबा भाई मैंने इंग्लिश नहीं आती, मैं उन्होंने गाल अच्छा मिसबा भाई कहते तू पंजाबी जी काट दे देखी जाओ। अच्छा, फिर गड्डी मैंने एक बॉल बीट किया, वो मेरी तरफ देखे ही ना, वो इस तरफ चला जाए। दूसरा तीसरा बॉल उसके पैड पे लगा, अपील की तो बल्ले के साथ नहीं लगा। तो अभी वो गाली इस तरह की इधर दे नहीं सकते। तो मैंने उसको कहा अबे
बल्ले से भी खेले, साथ वो गाली भी ऐड करके ना, तो जितने भी तो उसमें यूनुस भाई है, सारे लोग खड़े थे ना उसमें स्लिम में, तो उसने आगे से कहा नहीं व्हाट, उसको पता ही नहीं चला। जब मैंने गाली दी वो तो उसको तो समझ नहीं आई, मेरे जो जितने प्लेयर थे उनको वो सारे हंस हंस के लेट गए। अच्छा, पहला दिन जब पहली दफा आप उस ग्राउंड में दाखिल हो रहे थे, उस ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो रहे थे जहां से आपने अपना डेब्यू शुरू करना था, दिल की क्या हालत थी, सोच क्या थी, याद है वो दिन? वो बातें इस तरह की आप भूल ही नहीं सकते। मैं श्रीलंका से आया था, मैं पाकिस्तान ए के साथ था, तो 2010 में जब मेरी रिप्लेसमेंट एक दो प्लेयर की जगह पे हुई थी, तो मैं वहाँ पे वनडे खेल रहा था। वहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। वहाँ पे आया जी आप पाकिस्तान टीम में यहाँ से इंग्लैंड जाओगे। वहाँ से श्रीलंका से शुरू हुआ सफ़र, इधर आए कराची एक दिन स्टे किया, उसके बाद अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी यूके की। वहाँ तक जाते तक नींद एक मिनट के लिए भी नहीं आई। 2-3 दिन में बस एक वो दिल में जो ख्वाब था वो सामने चल रहा है, यार मैं जाऊंगा, ये होगा, जो जो आपके अंदर ख्यालात होते हैं वो करोड़ों लोगों की धड़कन आपके रनअप के साथ मुंसलिक होगी। ऐसी है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई तो कि 3 दिन मैं सोया नहीं। वहाँ पे जाते ही मैं रात को 10 बजे पहुंचा, सुबह उन्होंने मुझे मैच खिला दिया। तो ਤੁਸੀਂ ग्राउंड 'ਚ ਸੌਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? नहीं, बॉलिंग तो थोड़ी मतलब उस तरह की नहीं हुई थी जिस तरह एक मैं पीछे परफॉर्म करता आ रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। कभी लड़ाई हुई ग्राउंड में किसी के साथ? लड़ाई बहुत कम, मेरे ਨਾਲ कोई लड़दा ही नहीं सी। वो कहंदा सी जे लड़ पे ते गुस्से च सुन वंजनी दी मिठरी तान वे, मैं तो हो गई अरफान वे। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ। सर माशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए। मैं फैन है सर। अरे थैंक यू। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि प्लेयर तो आते रहेंगे लेकिन आप जैसा प्लेयर नहीं आएगा नेक्स्ट। ਬੇਸ਼ੱਕ ऐसी गल्लां च ना आयो। नहीं सर, नहीं सानू नजर नहीं लगू, सानू लग गया तो कोई नजर वट्टू ही लगूगा जी। क्या बात है माशाल्लाह। इरफान भाई ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚਪੇੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ। अच्छा, कौन सा ऐसा बैट्समैन था सर जो आपके सामने आता था तो आपको भी सोचना पड़ता था कि ओए यार किथे आ गया मेरे सामने? असल में जो ज़्यादा शॉटें मारता जैसा क्रिस गेल हो गया, ये हमारे मेरे लिए इनको आउट करना आसान होता था। जो मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी वो हाशिम आमला जिस तरह खेलते थे। वाह, हाशिम आमला, क्या बात। अच्छा, स्लेजिंग कभी किसी ने आपके साथ की? मैंने कोई देखता ही नहीं सी, मेरे वालों ने बेचारे ने करने की सी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਆਊਟ ਦੇ सर मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ सर। ਇਹ ਫੈਸਲ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान खेलना। क्या बात, कहते मैं चिड़ी उड़े कां उड़े का चैंपियन हाँ। सर आपने तो बहुत से लोगों को बोल्ड किया है, मोहब्बत में पहली दफा कब क्लीन बोल्ड हुए? नहीं, असल में देखा जाए तो देखा नहीं जाए इतने तक मोहब्बत कोई पहुंची ही नहीं। नहीं है, नहीं 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 नहीं, बात तो करनी पड़ेगी ना, ये तो ना बात। पहली मोहब्बत? मोहब्बत किसी से नहीं, क्रिकेट से ही मोहब्बत थी, अपने खेल से ही। ऐसा नहीं हो सकता इतना हैंडसम खूबसूरत लंबा चौड़ा लड़का हो, कोई कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? कॉलेज ऐसी गए ही नहीं। क्यों? 10 पढ़ने के बाद उसके बाद फिर क्रिकेट खेली है। तो मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला इतना। जितना मिला नहीं, इस तरफ गया ही नहीं मैं। कोई भी आया भी नहीं? कोई भी नहीं आया, ना इतनी हाइट का कोई मिला। अच्छा, लड़कियां हाइट की वजह से घबराती नहीं? ये तो उन्होंने को पूछना पड़ा। अच्छा, तो फिर कैसे फिर शादी का सिलसिला कैसे हुआ? ये घर वालों की मर्जी से ही। किस उम्र में हुई शादी?
मैं तकरीबन 20 साल का था जब मेरी शादी हो गई। क्रिकेट में आने से पहले मेरी शादी हो गई थी। कितने बच्चे? मेरे माशा 4 बेटे हैं। अरे वाह। अल्लाह। फैंस तो टकराती होंगी ना जब ग्राउंड में इधर उधर कोई फैन किसी ने नहीं कोई वाकया? नहीं, इस तरह कोई नहीं। साउथ अफ्रीका में था कि मतलब जब हम सुबह गए ग्राउंड में तो लोग जितने भी मतलब कि वहाँ के क्राउड, क्योंकि वहाँ का क्राउड जिस तरह का ना वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। तो हमारी फील्डिंग होती है वहाँ पे फाइन लेग थर्ड मैन पे, वहाँ पे होता है मैं इधर से आउट कर रहा था तो पीछे वो जितने भी गोरे थे 7 गोरियाँ भी थी, वो बस यही कह रहे थे, कहते जो है ना क्रिकेट इसमें 6 फुट से ऊपर कोई अलाउ नहीं होना चाहिए कि कोई आके खेले। आप कह रहे थे कि कड्डो। तालियां, शरीफ आदमी। थैंक यू। शरीफ आदमी। एक कुड़ी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ इरफान नीचे आके मेरी बात सुनो। ये फिर नहीं आए, वो छड़ गई। कल फैसलाबाद में आपने किसी को एक गेंद गिफ्ट की थी लव यू लिख के, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ। ऑटोग्राफ दिया है। लव यू कौन ऑटोग्राफ दिंदा जी? लव यू कहाँ लिखा था? नहीं सर मैं गवाह हूं, विटनेस हूं मैं सर, मेरे सामने की बात है। आज तक नहीं लिखा कहीं में। कहीं भी नहीं लिखा ना। ਆ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁੱਡੋ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲਣ ਡਿਆ? क्या बात है। अकरम साहब भी क्रिकेट खेलते सी, बल्ले पिछे लिखाया मां की दुआ। स्टेडियम जाके लोगों ने कहता मैंने पछाणो, मैं राणा टूंगा पागल हो गया। ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। प्लेयर सारे वो सन ब्लॉक ला के आए, ये सुर्खी ला के चले गए। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਹਨੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪਈਆਂ ਅੰਗੂਰ ਬਣ ਲੈ। किसी के अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत पे गौर किया करें। कैसे कर सकते हैं? नीयत कहाँ दिखाई देती है? ऐसी कौन सी दूरबीन है, ऐसा कौन सा चश्मा है जो किसी को देखो तो उसकी नीयत दिखाई दे दे? अगर नीयत ऐसे दिखाई देती तो लोग धोखे क्यों खाएं, लोग मरे क्यों, लोग रोए क्यों, लोगों के दिल क्यों टूटे? कैसे देखें हम नीयत? नीयत सिर्फ और सिर्फ एतबार के बच जाने या एतबार के टूटने के बाद पता चलता है। बिल्कुल। क्या बात है, वाह। एक नीयत सिर्फ छेती पछाणी जाती, केड़ी? गंदी नीयत। किसी के बड़ा ਵੱਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ। हाय 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 अजे बॉलर ने पहली बॉल की थी ते पानी दा वक्फा दे दिता। खिलाड़ी ने कहा जी अजे एक बाल होया, तुसी वक्फा कराता, कहंदा मैनू प्यास लगी। किसी के अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत पे गौर किया। नीयत 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 तंग आ गया हूं मैं ये बात सुनते सुनते। बार बार एक ही जुमला दोहराते जा रहे हो, तरीका नहीं बता रहे। मैं कह रहा हूं नहीं देख सकते किसी की नीयत। अगर नीयत देख सकते तो आज हमारा दिल सलामत ना होता। नीयत, अगर नीयत की बात की तो मैं जफ्फी डाल लूंगा। जी ਹੁਣ ਨਾ ਕਹੀ ਨੀयत तेरी मेहरबानी। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ही नहीं है। मैं सर आपको क्लियर करता हूं कि किसी के अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत पे गौर किया। कैसे 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 जान सकते हो किसी की नीयत? आप पढ़ लो। सर मैंने लिखा है, मैं क्लियर करता हूं। बड़ा ਵੱਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। क्यों? 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਸੀ। ਪਲੇਅਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ सर मैं क्लियर करता हूं आपको, किसी के अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत पे गौर किया करें। नीयत के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? कहीं मत जाइएगा। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਾ ਅੱਗੇ ਥਾ ਲੋ। बहुत अच्छे
क्या बात है इरफान साहब, माशाल्लाह ड्रोन ना सेल्फी ली होंगी। पहली लाइन तो समझ आ गई ना। अगली सुना दे अगली। किसी के अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत पे गौर किया करें, किसी के अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत पे गौर किया करें, क्योंकि अक्सर कोई सख्त जुबान इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी संवार रहा होता है और कोई मीठी जुबान बोल के आपकी जड़ें काट रहा होता है। और याद रखें, जिंदगी संवारने वाले बार बार नहीं मिलते, लेकिन जड़ें काटने वाले आखिरी सांस तक मिलते रहते हैं। इस पे क्या लिखा है? इसमें सर एक छोटा सा शेर लिखा है, जो हर मौसम की नीयत जानते हैं वही अपना भला पहचानते हैं। बज़ाहिर ये जो हैं तस्लीम करते, वो अंदर से भला कब मानते हैं। तेरे एक एक बाल पे दुनिया है नाची, वे तू लौंग ते मैं लाची, तेरे पीछे गवाची, वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे गवाची, तेरे इश्क की चमारी कुड़ी कच्चे ते कारी। सर आपको देख के मुझे एक ख्याल आता है सर। क्या? काश मैं भी इंसान होता। सर आपको देख के मुझे एक ख्याल आता है, चाइना जो ख्वाजा सर शीपोंग शिंगोंग शंगचिकंग। हनी साहब का रिश्ता वेखण आए ने, इन्हां दे वाल साहब ने उन्होंने ना कर दी। क्यों? ये कहंदे ना क्यों की थी? कहंदे बेटा वो बंदे भले मानस लगदे। फैसल ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। सर आपको देख के अक्सर ये ख्याल आता है कि अगर आपके हाथ से कोई चीज गिरे तो उसके पास टुटने तो अलावा कोई ऑप्शन दूजी नहीं है। वैसे ही सर मैं कह रहा हूं सर, मैं एक बात पूछना ਇਹਦੇ चाह रहा ਸਹੁਰੇ ਵੇਖਣ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਏ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। सर माशाल्लाह सर, सखावत साहब की फिल्म आ रही है, जैसे माजी में एक फिल्म बनी थी काफ कंगना, इन्हों की फिल्म आ रही मीम मंगना। ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਚੇ ਚਵਲ। क्या बात है, क्या बात। पहले बाल ते ओट होए, कहंदे मैं तवीज ही घर भुलना है। वो जो स्टेडियम में छक्के चौके पे नहीं डांस करती, उन्होंने कहंदे मैनू भी रजिस्ट कर लो। दूजी टीम ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਢੋਲ। हनी साहब भी क्रिकेट खेडन दे ते उन्होंने कढ़ता। क्यों? बल्ले दी मोटर से नान टिक्की लपेटी हुई उन्होंने। वो कड़ कड़ के खान दे। सर एक बस ही सर फेवर कीजिएगा सर, अगर कोई बात ऐसी वैसी लगे माजरत चाहूँगा सर। मेरी विश है, एक विश मैं करता रहता हूँ सर। सर अगर एक्टिंग का मौका मिले आपको हीरो बनने का, हीरोइन कौन सी होगी सर? अरे वैसी सर कभी सोचे ही नहीं है। 2 ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। सर एक गरीब का बच्चा जब मेहनत करके पाई पाई जोड़ के एक सर्दियों की शाल लेता है, फिर अचानक मौसम क्यों तब्दील हो जाता है? सर एक छोटा सा शेर लिखा है सर। ये सर एक शेर है, माना कि तेरा शहर में सानी भी नहीं है। क्या बात है, मास्क च चोल पवाए होंगे। माना कि तेरा शहर में सानी भी नहीं है, लिखी हो किसी ने वो कहानी भी नहीं है। आते रहेंगे और भी लेकिन यही सच है, दरियाओं में बहती हुई रवानी भी नहीं है। तेरा मुकाबला करने की कोशिश बेकार गई, तेरी बेपरवाही सजना में मार गई। तेरी बेपरवाही सजना में मार गई। न्यूज़ पे चल रहा है, मजाक रहा, देखते रहिए। तेरी बेपरवाही सजना मार गई।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आपका ख्याल है। अच्छा जी, नाम क्या है? फरूक सतार, साथ कौन बैठा है? मेरी वाइफ। ये कहाँ से है? ये फिलीपीन से है। ओह अच्छा, तो कैसे हुई मुलाकात? ये जॉर्डन में थी, ये जॉर्डन में थी? मैं दुबई में था। अच्छा तो इसकी कज़न और उसका हस्बैंड मेरे साथ जॉब करते थे। अच्छा। फिर कोविड का टाइम आया, हाँ 6 मंथ में फ्री था। हाँ। तो उसके बाद इसकी और मेरी बात होना स्टार्ट हुई कैसे? व्हाट्सएप से। पहले मैसेज किसने किया? पहले मैसेज मैंने किया था। क्या कहा था? मैंने कहा था हेलो हाउ आर यू। ओह वाओ। अक्सर बात करते करते इसको गुस्सा आता था, ये क्यों? ब्लॉक कर देती थी। ब्लॉक कर देती थी? ब्लॉक कर देते थे? क्यों करती थी ब्लॉक आप? Why you used to block him? Because I don't know here. I am busy for my work, so I'm not using too much my. And he wanted to talk all the time. Yeah. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। Okay, carry on, carry on. When you started liking him, After 6 months. what you saw in him? I told her before I don't like a relationship or out of country or another country. It's like that. But he's not stop message with me. He always keep on messaging you. Yeah, maybe not Yeah, only. what was in messages? Can you please elaborate what he wrote? You see, I too much love you. Okay. Then I said, if you too much love me, you can wait for me all the long time because I very far also. Okay. I am Jordan, so become COVID-19 1 year. Then 2021, I become in Dubai. You came to Dubai. Yes. For him. Yes. Then after married, faster for the nikah. Okay. Chat mangni patwaya. Can you please pass the mic? अच्छा भाईजान, आपको फोन पे ही मोहब्बत हो गई? फोन पे बस ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਨਾ। बताए ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। मसलन ये ईमानदार बहुत है। You want to say something to him in front of entire world? Always I love you. आए जवाब दो। आई लव यू टू। इमरान भाई, ये जोड़ी आई है साढ़े शो च, तो जामे शीरी का तोहफा तो इनको मिलना चाहिए। शेर अली ले आ भाई, आजा आजा आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जीते रहे, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे। जीते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसे हैं इमरान भाई? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आप मैं कैसी? आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। मैं भी अपने ड्रामे बड़े शौक से देखता हूँ। सखावत नाज भाई, आप जिस शहर से तल्लक रखते हैं ना, मैं भी उसी शहर की हूँ। वेलकम वेलकम जी। और आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। सलामत रहें आप, खुश रहें। क्या बात। बहुत मेहरबानी। शेर सुनाना चाहूंगी। अरे जी जी नाम तो शाबाश। ये बताया मैं ही- नाम तो बताया ही नहीं अपना। इरम तारिक अपने हस्बैंड को डेडिकेट करूंगी। कहाँ है? अरे वो बैठे हैं। हाथ खड़ा करें। अरे वाह जी वाह। नज़र में दीप जलते हैं सवालों के जवाबों के। आहा। जवानी की उम्र में हवाएं और होती हैं। है तेरी नज़र में तस्वीर बड़ी, लेकिन दिलों को लूट लेने की अदाएं और होती हैं। लव मैरिज? नहीं, अरेंज। और अब तो लव ही लव। शादी को कितनी देर होगी? 20 साल। क्या बात है। रात को लेट घर आते हैं या टाइम पे आते हैं? नहीं नहीं, माशाल्लाह, शुरू में बस लेट आते थे, एक दो फिर दिन। आपने सीधा कर लिया।
फिर मेरी मोहब्बत में इनको सीधा मोहब्बत में? हाँ मोहब्बत कैसे? में। जब ये लेट आते थे तो फिर क्या? इनको पता है मैं शाम की चाय नहीं पीती इनके बगैर। ओए क्यों पान बनाते हैं बाजी? क्या बात। अच्छा, अल्लाह ताला ऐसा ही सलूक रखे। तो कुछ कहना चाहेंगी इन्हें? जो रियल लाइफ में नहीं कहती, हाँ आई लव यू। आपकी इस मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए करशी का जामे शीरी आपका हुआ। ਲੈ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। क्या सुनना चाहेंगे? बस एक शेर पढ़ना है। Where are you from? फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम बर्मिंघम। Please, please, please. असला नाल जनेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे। आए। असला नाल जनेकी करिए नस्लां तक नहीं भुलदे, बेनस्लां नाल नेकी करिए ते उल्टियां चालां चलदे। Take care of yourself. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई वो शेरे को बुला के तो गिफ्ट दें, जामे शीरी हमारा जो है यूके तक जाएगा। भेजें, लेके आओ शेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम? इंजमाम अल हसन सर। इंजमामुल हसन। यस सर। खूबसूरत नाम। जी सर, थैंक यू। क्या करते हैं? सर मैं लॉ से मेरा तल्लक है, आई एम एडवोकेट। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। साईं कोई गलती तो नहीं थी गई? नहीं सर, सर आप बड़े प्यारे शख्सियत हैं आपकी, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। साईं दुआएं देते, कहीं नोटिस ना भेज देना। साईं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, छोटा सा बच्चा है। सर माफ किया सर। शुक्रिया। साईं क्या कहना चाहते हो? सर माशाल्लाह आपकी एक्टिंग देखी है, बहुत प्यारी है। और इरफान भाई ख़ास तौर पे आपकी जब एंट्री थी वर्ल्ड कप के अंदर, और मुझे वो बात अभी भी याद है जब विराट कोहली साहब जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे और उनके पास लोहे के स्टूल थे। मजे की बात ये है। देखें मेरे मुल्क को, देखें मेरे मुल्क को, जैसे भी हालात हो, प्लेयर बड़ा हो तो साहब कह के बुलाते हैं। ये है पाकिस्तान। वर्ल्ड कप में जब भाईजान की एंट्री हुई तो आप अंदर चिप्स बेच रहे थे। जी सर। सर मैं बता रहा था कि जब आप पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में गए थे और विराट कोहली साहब को देखा था कि वो लोहे के जो स्टूल हैं उनके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस दिन हमारा जो है वो आधा वर्ल्ड कप तो हमने जीत लिया था कि आपका इतना प्रेशर है इसमें। तो आज क्या कहना चाहेंगे सर? सर पोएट्री की 2 लाइनें हैं सर। अरे आपकी खातिर खास तौर पे कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर थी। दीदार की काबिल तो कहाँ मेरी नजर थी। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर थी, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। जीते रहे सर, बड़ी खुशी हुई आपकी तशरीफ आवरी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब के लिए भी जाने शीरी होना चाहिए भाईजान। ले आ भाई शेरे। हेलो भाजी, भावें आप पी लो भावें टप च पा के इत्थे वेच लो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नाम? जी रियाज हुसैन। रियाज साहब बड़े मुनसिब से बंदे लग रहे हैं आप। सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। ऐसा नहीं होता जो खानदान में फैसले करवाता है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है जो आपने कहा है। कोई नहीं मानता? अच्छा सर क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इरफान भाई को कलाम एक डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो आप तो है ही शहजादे,
और मैं दुआ गो हूँ इन तीनों के लिए, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये हमारा सरमाया है। ये क्या बात। आपको भी अल्लाह सलामत रखे। तो इजाज़त सुना के जाइए हुण। जी। ते राती जागे शेख सदावे, ते राती जागण कुत्ते तैथी उत्ते, ते दर मालिक दा मोल ना छड़ दे, ते मारिए सो सो जुत्ते तैथी उत्ते, ते सारी राती ओ राखी कर दे, ते दिने जाड़ना ते सुते तैथी उत्ते, ते भुलिया तू यार मना लै निते बाजी लैगन कुत्ते तैथी उत्ते। मैं क्या जामे श्री दियो ना इधर गिफ्ट भाजी नू। दो भाई, शेर अली जामे श्री का तोहफा आपके लिए। इरफान भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और जो कुछ आपने इस मुल्क के लिए कर छोड़ा है, हम आपके एहसानमंद हैं और सारी जिंदगी से एहसान को नहीं भूलेंगे। थैंक यू। आपकी आंख में कभी आंसू ना आए सर। थैंक यू वेरी मच।